Very good evening to one and all. I hope all are very good. All are doing very good. And you all are? Good evening, ma'am. I have already started. Today, we are going to start with chapter 8. And what chapter 8 is meant over here, it is all about money. Online student, just a minute. Thank you. So we are starting with the chapter money. अब अगर हम मनी की बात करें तो नथिंग इज न्यू. You all know what money is, why we are going to have money, what is the objective of money, how money was being invented,
who is the supplier of money, who creates demand for money. मतलब थोड़ा थोड़ा आपको अपने दिमाग में ये सारी चीजें हैं. बट इससे पहले इफ वी आर गोइंग टू चेक आउट फ्रॉम द बुक, जस्ट recap quickly in your mind with me कि why money was being invented. सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या आना चाहिए कि मनी की खोज क्यों हुई. Why money was being invented. और मनी से पहले मेरे पास कौन सा सिस्टम था? बार्टर सिस्टम. What that barter system is called as? Anyone else? What is that barter system is called as? Barter system is called as CC economy. What is this CC economy? CC economy means commodity to commodity. I have a CC economy, and CC economy means where it is going to be a commodity to commodity. चीज के बदले चीज. हमारे पास हिस्टोरिकली, तिवारी जी आप जगह इधर हो जाओ, लोकेश आप भी इधर हो जाओ प्लीज, प्लीज आप इधर हो जाओ, थैंक यू. तो आपके पास क्या है बेटा? चीज के बदले चीज, कमोडिटी फॉर कमोडिटी. ये हमारे पास जनरेशन टू जनरेशन चलता आया. बट ये जब मेरे पास चल रहा था, इट वॉज हैविंग सर्टन लिमिटेशंस. मेरे पास इसके क्या एडवांटेजेस थे? नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू कि इसके एडवांटेजेस क्या है. The one who is going to ask you कि इसके ड्रॉबैक्स क्या थे. What was the drawback of it? अभी मैंने बुक में से नहीं रेफर किया, अभी आप चैप्टर के साथ प्लीज कनेक्ट हुईए. ठीक है. आपके पास इसके 5 बेसिक ड्रॉबैक्स थे. पहला ड्रॉबैक आपके पास क्या था? दैट इज अ रेसिप्रोकल डिमांड. What do we mean by reciprocal demand? One question is expected from here. Reciprocal demand means lack of double coincidence of wants. Double coincidence मतलब जो फायर है वो एक तरफ से नहीं, वो दोनों तरफ से लगी हुई है. अब इस फायर का मतलब क्या हुआ? If you think I am capable to satisfy your want, then you should be able to satisfy my want. प्लीज अपने दिमाग में एक चीज रजिस्टर करना, डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट्स का मतलब क्या होता है? सैमल्टेनियस फुलफिलमेंट ऑफ म्यूचुअल वांट्स. डबल को इंसिडेंस का मतलब क्या होता है? सैमल्टेनियस फुलफिलमेंट ऑफ म्यूचुअल वांट्स. मतलब हम दोनों जने एक दूसरे की इच्छाओं को पूरा करने के लिए एट द सेम टाइम कैपेबल हैं. ये नहीं मैं आपसे कह रही कि आई एम गोइंग टू हैव इट इन द फ्यूचर. नो, आई हैव यूज्ड द वर्ड ओवर हियर सैमल्टेनियस. सैमल्टेनियस का मतलब एट दैट टाइम. And what is this double coincidence of wants called as? It is called as nothing. It is called as your reciprocal demand. Demand के बदले demand. You need wig, I need a haircut. You need haircut, I need to get my shoe mended. पहले टाइम पे क्या होता था? Society was being divided into a few sections.
Yes, online students, there was some technical glitch. Welcome back. So what I was explaining you, difficulties of barter system. सबसे पहले आपके पास क्या था कि I was having a shortage of reciprocal demand. ऐसा नहीं था कि demand नहीं थी, but the process was very slow and it was a time consuming. Okay. The second difficulty आपके पास क्या थी जी? The second difficulty was, कोई बता सकते हैं? Sorry, it was store of value. What is the store of value? That I was not able to store the money. There was no warehousing. There was nothing कि जहां पे मैं चीज को संभाल के रखती. जो भी transaction होनी है, that transaction is going to taken place at the spot only, on the spot only. No transaction I can carry forward for the future. Because if you can remember, in those days the exchange किस form में होता था? It was going to be there in the form of animals, in the form of fruits, vegetables, in the form of a perishable goods. तो वहां पे स्टोरेज की किसी भी तरीके से कोई भी फैसिलिटी हमारे पास नहीं होती थी, और इसीलिए मेरे पास थर्ड पॉइंट आया, दैट वाज द लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ deferred payments. What is the thing? Lack of standard of deferred payments. What is this deferred payment? Contractual payments. Future payments. Yes, Simran. It's a future payment. मतलब मेरे पास कोई भी स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, मेरे पास कोई भी गोडाउन्स नहीं है, मेरे पास कोई भी बफर स्टॉक्स नहीं है. मेरे को जो भी करना है उसी टाइम के ऊपर करना है. ओके, आई प्रॉमिस यू कि आई विल कीप माई वर्ड्स. आप मेरे को अभी ये चीज दे दो, यू हैव अ हेयर कट फॉर मी, और 6 months के बाद आई एम गोइंग टू हैव अ वेरी गुड वेजिटेशन फॉर माई एप्पल्स, सो आई विल गिव यू एप्पल्स. और उस टाइम के ऊपर जो होते थे लोग बड़े जबान के पक्के होते थे. The concerned person has definitely given you apples, but when they opened that carton, the condition of apples was not at all good. क्यों? क्योंकि उस टाइम के ऊपर ना कोई प्रिजर्वेटिव्स थे आपके पास, ना ही किसी तरीके की कोई अच्छी कोल्ड स्टोरेज थी. तो जितना भी ट्रांजैक्शन होता था, इट इज गोइंग टू बी देयर ऑन द स्पॉट. नो फ्यूचर पेमेंट्स, नो कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स, नो डेफर्ड पेमेंट्स. Right? The fourth is going to be taken as, that is, you have already told me, Mr. Akash को आज क्या हो गया? यूनिट ऑफ अकाउंट. अब ये यूनिट ऑफ अकाउंट क्या चीज है? हमने अभी देखा चीज के बदले चीज. आई वॉज नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ अ मेजरिंग स्केल कि ठीक है भैया तुम्हारे पास है, तुम सेंटीमीटर में दे दो, तुम रुपीज में दे दो. नो, इट वॉज नॉट लाइक दैट. मेरे पास जो भी एक्सचेंज होता था, दिस एक्सचेंज इज गोइंग टू बी कैरी ऑन इन द फॉर्म ऑफ अप्रोक्सीमेशन. अच्छा भैया ठीक है, तुमने मेरा हेयर कट कर दिया, एम आई गोइंग टू काउंट माई हेयर? नो, आपने नीडफुल कर दिया और मैंने आपको धान दे दी एक बोरी भर के. देयर वॉज नो एनी एक्यूरेट मेजरमेंट ईदर फॉर द पेमेंट और फॉर द वेट्स. जो भी काम चलता था वो किसके साथ चलता था? सिर्फ अंदाजे से चलता था. व्हाट इज द फिफ्थ? Indivisibility. The fifth problem of barter system was what? It was a problem of indivisibility. जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि उस टाइम के ऊपर सबसे ज्यादा आपकी जो प्रॉपर्टी होती थी वो तीन चीजें होती थी. आपके पास लैंड कितनी है, आपके पास एनिमल्स कितने हैं. एनिमल्स में बेसिकली चीज क्या होती थी कि आपके पास घोड़े और भेड़ें कितनी है, और आपके पास कितने ऑर्चार्ड्स है. ऑर्चार्ड्स मतलब आपके कितने बाग बगीचे हैं. तो इनडिविजिबिलिटी, आई नीड टू हैव अ हॉर्स फ्रॉम यू. अब एक हॉर्स के बदले में मैं आपको 2 भेड़े दे रही हूँ. हॉर्स इज एन एक्सपेंसिव आइटम. तो ऐसा तो नहीं है ना कि 2 भेड़ों के बदले में आई एम गोइंग टू चॉप हॉर्स और आई एम गोइंग टू से अपर पार्ट यू टेक एंड लोअर पार्ट यू विल टेक. नो, वहां पे क्या चलता था? चीज के बदले चीज चलती थी. अच्छा भैया तेरे को घोड़ा चाहिए,
तू घोड़ा ले जा, उसके बदले में मेरे को 5 भेड़े दे दे। बट दैट वाज नॉट एन एक्यूरेट एक्सचेंज, इट वाज इनकम्प्लीट एक्सचेंज। बट ये 5 डिफिकल्टीज आपके पास उस टाइम के ऊपर होती थी, विच इज टू बी टेकन एज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसी की वजह से आपके पास क्या आया, यू हैव अनदर सिस्टम ऑफ मनी। कमोडिटी मनी से हम किसकी तरफ शिफ्ट हो गए जी? ये क्वेश्चन आता है आपके पास, कमोडिटी मनी से हम कहां पे शिफ्ट हुए? कमोडिटी मनी से हम शिफ्ट हुए मेटेलिक मनी के। ये कमोडिटी मनी की आपकी 5 डिफिकल्टीज थी। इसके बाद मेरी नेक्स्ट स्टेज आई मेटेलिक मनी। अब मेटेलिक मनी क्या होती है? वेयर आई एम गोइंग टू हैव अ करेंसी इन द फॉर्म ऑफ मेटल्स। मेटल्स क्या है? गोल्ड है, कॉपर है, सिल्वर है, ब्रॉन्ज है, ठीक है। अब मैं हूं चंद्रगुप्त मौर्य। मैं कौन हूं? चंद्रगुप्त मौर्य। अब मैं चाहती हूं कि मेरे नाम का सिक्के चले सारे यहाँ पे, तो मैंने एक गोल्ड का सिक्के चला दिए, उसके ऊपर अपनी स्टैंप लगा दी और उसको एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज मैंने यूज किया। प्लीज कैच माय वर्ड्स वेरी केयरफुली। अभी मैं चैप्टर के ऊपर नहीं जा रही, हमने जिस रास्ते पे जाना है मैं सिर्फ वहां से अभी आपको कनेक्ट कर रही हूँ। यहाँ यहाँ हमने हॉल्ट लेना है, ये आपकी चीजें है। तो अब मेरे पास क्या है? मेरे पास एक मेटल का कॉइन है। एनीवन कैन प्रोवाइड मी विद द कॉइन? आप सोचो आपके हाथ में एक मेटल का कॉइन है, उस कॉइन के ऊपर लिखा हुआ है 5। अगर उस कॉइन के ऊपर ये आपके पास देखो, ये एक मेटल का कॉइन है एंड यू कैन सी, इफ यू विल सी बेटा, इस कॉइन को, इस कॉइन के चारों तरफ आपके पास यहाँ पे गोल्ड की पॉलिश हुई हुई है, गोल्ड सर्कल है ये आपका, ठीक है। और इमेजिन करो कि ये पूरा कॉइन आपका गोल्ड का है एंड यू आर यूजिंग इट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? इट हैज बीन रिटन 10। मतलब ये आपको परचेजिंग वैल्यू दे रहा है कितने के? वर्थ 10 के। यू टेक इट टू द मार्केट एंड यू आर गोइंग टू गेट बैक द थिंग्स वर्थ ₹10। जो इस कॉइन के ऊपर लिखा हुआ है, दिस इज टू बी कॉल्ड एज व्हाट? एनीवन? No one. It is called as a face value or it is called as an extrinsic value. EXTRINSIC. बाद में अभी बुक में आपको अंडरलाइन करवा दूंगी। बट व्हाट इज दिस कॉल्ड एज? इट इज कॉल्ड एज एन एक्सट्रिंसिक वैल्यू। इस नोट के ऊपर आप देख पा रहे हो 10 लिखा हुआ है, तो ये 10 क्या है? इसकी एक्सट्रिंसिक वैल्यू, बिकॉज इट इज मेकिंग यू कैपेबल टू बाय द थिंग्स वर्थ ₹10। बड़ा खुश कि मेरे पास क्वाइन आ गया, एक यूनिट ऑफ अकाउंट आ गया। आई विल टेक दिस टू द मार्केट एंड आई एम गोइंग टू हैव द गुड्स वर्थ ₹10। धीरे धीरे मार्केट में गॉसिप होना शुरू हो गया। क्या गॉसिप होना शुरू हुआ? यार तेरे को पता है चंद्रगुप्त मौर्य ने ये जो क्वाइन इंट्रोड्यूस किया है ना, ये गोल्ड का बना हुआ है, दिस इज ऑफ गोल्ड। मैंने कहा अच्छा। तो मैं मार्केट में गई और मैंने मार्केट को, आई हैव नॉट यूज्ड इट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, रादर आई हैव सोल्ड इट एज अ कमोडिटी। मैंने मार्केट को इसमें कैसे बेच दिया? कमोडिटी की फॉर्म में बेच दिया। अब आप ये देखो कि ये कॉइन की बाहर वाली फेस वैल्यू कितनी थी? 10 थी। बट जब मैं इसको एज अ कमोडिटी बेच रही हूँ, तो मतलब आई एम गोइंग टू गेट बैक द वैल्यू ऑफ दिस कॉइन इन द टर्म्स ऑफ गोल्ड। तो वो क्या होगी? इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू। कमोडिटी वैल्यू एंड इंट्रिंसिक वैल्यू वन इज द सेम थिंग। फेस वैल्यू एंड एक्सट्रिंसिक वैल्यू वन इज द सेम थिंग। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मेटेलिक मनी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक आपका क्या था? कि इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू यूज्ड टू बी ग्रेटर देन extrinsic value. So we started to make use of it as a commodity, not as a medium of exchange. Have you understood this thing? ये किसका ड्रॉबैक था? मेटेलिक मनी का था। मेरे पास अभी तक 2 सिस्टम्स आए। पहला मेरे पास था कमोडिटी टू कमोडिटी, उसके 5 ड्रॉबैक्स थे। और फिर मेरे पास आया मेटेलिक मनी का।
मेटेलिक मनी के पास मेरे पास सिर्फ एक बेसिक ड्रॉबैक था कि उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू इज यूज्ड टू बी ग्रेटर देन इट्स एक्सट्रिंसिक वैल्यू। फिर उसको एवोल्यूशन किया गया उसका, कमोडिटी मनी से मेटेलिक मनी आई, मेटेलिक मनी से मैंने कौन सी मनी को इंट्रोड्यूस किया? पेपर मनी। डू यू हैव अ पेपर? पेपर मनी है जी, मेरी क्लास बहुत रिच है, वाह जी वाह। अब ये देखो बेटा, ये आपके पास पेपर मनी है। अब इस पेपर मनी को आई एम ऑर्डरिंग यू, प्लीज पे अटेंशन, आई एम ऑर्डरिंग यू that this you have to accept as a medium of exchange. Why? क्योंकि मैंने इसको क्या बना दिया? लीगल टेंडर बना दिया। what is money? Money is nothing, money is a legal tender. Whatever the law of the country declares, मैंने चंद्रगुप्त मौर्य की बात की थी, उसने अपने इंपायर में वैसे वाले क्वाइंस को इंट्रोड्यूस किया, और कोई आया तो उसने अपनी डेंसिटी के क्वाइंस को इंट्रोड्यूस किया, बट दे वर ऑल ऑफ मेटल्स ओनली। बट जब मेटल मनीज की मैंने एवोल्यूशन कर दी, मेरे पास पेपर मनी आया, तो इंडिया ने अपनी करेंसी को इंट्रोड्यूस किया, यूएसए ने अपनी करेंसी को इंट्रोड्यूस किया। बट आप कहते हैं मैं तो पंजाब हूं, मैं तो इसको एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा। कर्नाटका कहता मैं कर्नाटका हूं, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो मेरे पास मेरा सेंट्रल बैंक था, उसने इसको क्या बना दिया? मेरे पास, आपने याद किया ना चैप्टर 7 में, अगर आपके पास कंट्रोवर्सी होती है, हु इज गोइंग टू गिव यू द सॉल्यूशन? सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या बना दिया? लीगल टेंडर बना दिया। अब ये लीगल टेंडर, आप ये देखो इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, इसकी फेस वैल्यू कितने की है? 500 की। यू गो एंड गेट द थिंग्स वर्थ ₹500। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आई प्रॉमिस द बेयरर टू पे वर्थ ₹500, और उसके नीचे गवर्नर के साइन होते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। और इस पेपर को बनाने की, इस पेपर की कोई कीमत है? बहुत कीमत है। टिल इट इज द लीगल टेंडर। अगर ये लीगल टेंडर नहीं हुआ तो इस पेपर की कोई भी कीमत नहीं है। बट अगर इस पेपर को बनाने की कीमत देखो, इट इज गोइंग टू बी हार्डली 25 पैसा और 50 पैसा, नॉट मोर देन ₹1। तो इस इंट्रिंसिक वैल्यू इज वेरी वेरी लेस और इनसिग्निफिकेंट, और उसकी एक्सट्रिंसिक वैल्यू, जितनी वैल्यू इसके ऊपर लिखी हुई है, फेस वैल्यू, आई एम गोइंग टू गिव यू वर्थ ऑफ। तो आज की डेट में मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी में हमारे पास कौन सा पैसा चल रहा है? वी आर एक्सेप्टिंग एज अ पेपर मनी। बट पेपर मनी की भी एवोल्यूशन हो चुकी है, और वो किससे हुई? प्लास्टिक मनी से। नो, प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी क्या है? क्रेडिट कार्ड्स एंड डेबिट कार्ड्स, वो आपकी प्लास्टिक मनी है। और प्लास्टिक मनी की भी आगे एवोल्यूशन हो चुकी है, दैट इज अ डिजिटल करेंसी। सो आपका प्रोटोकॉल क्या हुआ? कमोडिटी मनी, मेटेलिक मनी, पेपर मनी, प्लास्टिक मनी एंड डिजिटल मनी। एम आई क्लियर? राइट। अब अगला क्वेश्चन क्या उठता है भाई? जो देखो, छोटे से छोटा बच्चा, बड़े से बड़ा बुजुर्ग, हर बंदा पैसा 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 कर रहा है। ये पैसा होता क्या है? everyone is after this money. Why do we need this money? What is this money? सबसे पहले हमने यहाँ पे ये चीज देख लिया कि मनी क्या चीज है, which is capable to satisfy my want. कोई भी एक ऐसा मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या चीज है? अ लीगल टेंडर है। बट अब क्वेश्चन क्या उठते हैं कि व्हाई डू आई नीड मनी? आप लोगों ने +2 में जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है, मनी सप्लाई का कॉन्सेप्ट सबने पढ़ा है, बट आप लोगों ने ये नहीं पढ़ा कि हम मनी की डिमांड ही क्यों करते हैं। So the first thing for today जो आपको समझनी है, what is that thing? कि why do we demand money? Money is, please note down this thing. This thing you have to all note down. Money is to be demanded. Money is to be demanded to satisfy three basic motives. Money is demanded to satisfy
थ्री बेसिक मोटिव्स। मेरे पास मनी के क्या हैं? थ्री मोटिव्स हैं। और वो थ्री मोटिव्स कौन कौन से हैं? ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव एंड स्पेकुलेटिव मोटिव। आज की पहली लर्निंग, ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव एंड स्पेकुलेटिव मोटिव। गरीब से गरीब इंसान, अमीर से अमीर इंसान, इंडियन, अमेरिकन, पाकिस्तानी, श्रीलंकन, जो भी है, चंडीगढ़ियन, हरियाणवी, राजस्थानी, जो भी बंदा है, वो पैसे की डिमांड क्यों करेगा? दे आर गोइंग टू क्रिएट अ डिमांड फॉर मनी टू सेटिस्फाई these three basic needs, that is to have a transaction motive, that is to have a precautionary motive, and then to have a speculative motive. What is a transaction? अभी हमने देखा कि उसकी आपके पास जो बार्टर सिस्टम था, बार्टर सिस्टम का सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? रेसिप्रोकल डिमांड, लैक ऑफ डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट्स, लैक ऑफ साइमल्टेनियस फुलफिलमेंट ऑफ म्यूचुअल वांट्स। तो उस प्रॉब्लम को किसने पूरा किया? मनी ने पूरा किया। एंड व्हाई मनी इज गोइंग टू बी डिमांडेड? दैट इज टू सेटिस्फाई माय मेरी डेली नीड्स। ट्रांजैक्शन, आपको डेली ट्रांजैक्शन के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। रूटीन नीड्स, बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो ट्रांजैक्शन मोटिव की जो डिमांड है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स अपॉन योर इनकम लेवल। यू हैव टू कीप इन माइंड दिस थिंग। पहला क्वेश्चन, व्हाई डू आई नीड मनी? आई एम इन नीड ऑफ मनी टू फुलफिल माई बेसिक नीड्स। आई एम इन नीड ऑफ मनी टू सेटिस्फाई माई रेगुलर नीड्स। तो टू रेगुलर ट्रांजैक्शन के लिए मेरी जो डिमांड है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इट विल डिपेंड ऑन माई इनकम लेवल। More the income, more will be the demand for transaction. Less the income, less will be the demand for transaction. Everybody knows कि आपके पास जो income होती है, what do I do with that income? One part I consume and the other part I save. Human tendency, nature है आपकी, इसके बिना हम survive नहीं कर सकते। So the one part I am going to consume and the other part it's going to be save. So the third motive जो आपके पास आया, what is that? Precautionary motive. That is to keep my future safe. I am worried about my future. How will I have my old age? What will happen if I will fall sick? So I need to take care of my future. तो उसके लिए what I am going to do? I am going to do the savings. तो यहाँ पे भी प्लीज ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। डिमांड फॉर इनकम भी जो है, सॉरी, सेविंग के लिए भी किसके ऊपर डिपेंड करेगा? वो भी आपकी इनकम के ऊपर। यहां से आपको क्या लर्निंग पिकअप करनी है? दैट द डिमांड फॉर योर ट्रांजैक्शन मोटिव, डिमांड फॉर योर स्पेकुलेटिव मोटिव is going to depend on what? They both are dependent upon your income level. क्यों? क्योंकि आपकी जो इनकम है it is divided into two parts. One part I consume and the other part I save. And they are directly proportionate to each other. जितनी ज्यादा मेरी इनकम होगी उतना ज्यादा पैसा मेरा कंजप्शन में जाएगा, उतना ज्यादा पैसा मेरा सेविंग में जाएगा। कोई शक? अब उसके बाद आपके पास लास्ट पॉइंट आ जाता है। एंड व्हाट इज दिस लास्ट पॉइंट? इट इज टू बी टेकन एज अ स्पेकुलेटिव मोटिव। व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म स्पेकुलेशन? सट्टाबाजी, क्विक रिटर्न्स। मतलब आप कुछ प्रोडक्टिव नहीं करना चाहते, आप गैम्बल कर रहे हो, गैम्बल कर रहे हो, कैसीनो में जाके खेल रहे हो, आपका ड्रॉ निकल जाए, आपकी लॉटरी निकल जाए, आपको क्विक गेन हो जाए। तो वो क्या होता है?
आपके पास कोई भी चीज प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही है आपके पास, आपने इकोनॉमी को किसी भी तरीके से कंट्रीब्यूट नहीं किया, बट यू आर एक्सपेक्टिंग आई एम गोइंग टू गेट समथिंग। तो जब मैं डिमांड करती हूँ ऐसे सारे मोटिव्स के लिए, उसको मैं क्या बोलती हूँ, इट इज टू बी टेकन एज अ स्पेकुलेटिव मोटिव। अब यहाँ पे टर्निंग पॉइंट क्या है मेरे बच्चों, कि स्पेकुलेटिव डिमांड की जो डिमांड है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है रेट ऑफ इंटरेस्ट के। जस्ट जो फर्स्ट की 2 की डिमांड है वो डिपेंड करती है आपकी इनकम लेवल के ऊपर, और जो स्पेकुलेटिव डिमांड है उसकी डिमांड किसके ऊपर डिपेंड करती है, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। कौन सा, सेविंग रेट की लैंडिंग रेट? नो, लैंडिंग। आपको किस रेट के ऊपर लोन मिल रहा है वो रेट है, क्योंकि आप अपनी इनकम में से तो खर्च कर ही नहीं रहे हो, आप पैसा उधार लेके तो पैसा लगा रहे हो। हर्षद मेहता ने क्या किया था, हर्षद मेहता ने लोन ही तो लिया था, लोन लेके उसने मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया, अपना प्रॉफिट निकाला और मार्केट का पैसा उसने उसको वापस कर दिया। क्योंकि जो आपकी इनकम है वो हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करनी है, वो मेरे पास तीसरा हिस्सा नहीं है, इधर आई एम गोइंग टू कंज्यूम और आई एम गोइंग टू सेव। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी नहीं हो रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तरीके से चांस लक्की गेम खेली जा रही है। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि किस रेट के ऊपर आपको लोन्स जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल है। तो अगर आपका लोन सस्ता अवेलेबल है तो डिमांड क्या होगी, ज्यादा होगी, और अगर आपको लोन्स महंगे हैं तो डिमांड क्या होगी, कम होगी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इतनी बात समझ में आई? यस मैम। अब यहाँ पे आपके पास मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या हुआ, कि जो फर्स्ट 2 फंक्शंस हैं, दैट व्हाई डू आई हैव अ डिमांड फॉर मनी, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है, डिमांड जो है वो आपकी किसकी फंक्शन है, इनकम का है। और ये दोनों जने क्या हैं, दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर, दे आर पॉजिटिवली रिलेटेड टू ईच अदर। बट जो मेरी डिमांड डिपेंड कर रही है स्पेकुलेटिव पर्पस के लिए, स्पेकुलेटिव पर्पस के लिए वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, दैट इज 1/r, क्योंकि वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर मैंने 1/r लिख दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, इट इज इनवर्स। यहाँ पे मेरा जो रिश्ता हो गया, ये रिश्ता मेरे पास क्या आ गया, नेगेटिव। मैंने क्या कर दिया, इट डिपेंड्स कि मेरे पास कॉस्ट ऑफ मनी, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, इट इज टू बी टेकन एज अ कॉस्ट ऑफ मनी। चीज को महंगा कर दिया, डिमांड कम होगी, चीज को सस्ता कर दिया, डिमांड ज्यादा। एम आई क्लियर फॉर दिस? ठीक है। अब इसके बाद आपको पता है कि अब डिमांड, अब मनी क्या चीज है। मनी को मैंने अभी बताया कि एक लीगल टेंडर है, जो भी आपकी कंट्री का सिस्टम, आज आप सब लोगों ने डीमोनेटाइजेशन को विटनेस किया है, ठीक है। आपके कंट्री के सिस्टम ने बोला कि 2000 का नोट इज नॉट गोइंग टू बी एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कैन एनीबडी फाइट विद द सिस्टम, कि मेरे पास तो इतने पड़े हैं, मैं क्या करूंगा? नो। जब भी कोई चीज लीगली बना दी जाती है तो इट हैज टू बी एक्सेप्टेड, राइट। आज की डेट में मोदी जी अगर बोलें कि यू आर गोइंग टू एक्सेप्ट दिस काइंड ऑफ पेन एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, डू यू हैव अ राइट टू से नो? नो, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। हु सप्लाइज मनी, वो आप सबको पता है, आरबीआई है, कमर्शियल बैंक्स हैं, आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, आपका 3 जने हैं आपके सप्लायर ऑफ मनी में। जैसे 3 मोटिव्स फॉर डिमांड फॉर मनी है, वैसे ही 3 सप्लायर्स हैं। 3 सप्लायर्स, फादर कौन है, ग्रैंडफादर कौन है, आरबीआई है। होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, आरबीआई है। रिटेलर्स कौन है, कमर्शियल बैंक्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। वी विल सी दैट थिंग। बट अब क्या है कि जब मैंने ये देखा कि मनी एक लीगल टेंडर है, as such you will be surprised to know this thing
कि अभी तक किसी भी इकोनॉमिस्ट ने एक अच्छी एक्सेप्टेबल डेफिनेशन ऑफ मनी नहीं दी है। बाय द एंड ऑफ द डे अगर मैंने किसी को ये बताना है कि मनी क्या चीज है, तो आई जस्ट हैव वो वन लाइन, एंड व्हाट इज दैट? मनी इज व्हाट मनी डज। मनी क्या है? जो मनी करती है। मनी अच्छा काम भी करती है, मनी बुरा काम भी करती है। मनी दवाई भी खरीदती है, तो मनी वेप भी खरीदती है आपके लिए। मनी दान के लिए भी यूज होता है, मनी चिट्टे के लिए भी यूज होता है। सो मनी क्या है? मनी इज व्हाट मनी डज। बट यस, व्हाट इज अ मनी? मनी इज अ लीगल टेंडर। Whatever the law of the country declares, I have to accept that thing as a money. अब इसमें आगे दो टाइप्स हैं जो आपने पहले भी की हुई हैं। एज अ लीगल टेंडर आई हैव गॉट अ लिमिटेड लीगल टेंडर, आई हैव गॉट अ अनलिमिटेड लीगल टेंडर। लिमिटेड लीगल टेंडर में मेरे पास क्या आता है? कॉइन्स ऑफ ऑल द डिनोमिनेशंस प्लस ₹1 नोट। द वंस हु आर डूइंग इट फॉर फर्स्ट टाइम, आपके पास जो लिमिटेड लीगल टेंडर है, लिमिटेड लीगल टेंडर में आपके पास कॉइन्स ऑफ ऑल डिनोमिनेशंस, चाहे वो 10 का सिक्का है, चाहे वो 20 का सिक्का है, चाहे वो 25 पैसे का सिक्का है, वो प्लस ओनली ₹1 नोट ऑफ करेंसी नोट, पेपर नोट। मतलब वो कौन इश्यू करता है? इट इज टू बी इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कई बारी ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस में भी हम फंस जाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। Why it is called as a limited legal tender money? Because in the medium of exchange, I can accept in the form of coins up to 1000 only. It cannot be more than that. ऐसा नहीं है कि आप नहीं ले सकते। अगर आपका मन है, आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप लीजिए। बट अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है, तो आपके पास एक लीगल राइट है। यू कैन गो इन द कोर्ट एंड यू कैन क्लेम कि मेरे को 1000 के बाद करेंसी नोट चाहिए। तो इन ऑल द करेंसी नोट्स, ₹1 करेंसी नोट्स एंड डिनोमिनेशंस जो क्वाइंस है, वो 1000 है। बट अगर particularly you are going to make a transaction in the form of 25 पैसा, इसमें आप लोगों ने तो शायद देखा भी नहीं होगा, किसी ने देखे 25 पैसा? तो 25 पैसे में यू कैन मेक अ ट्रांजेक्शन अप टू ₹125 ओनली। यू कांट एक्सीड दैट। नहीं, बहुत कम चलता है अब तो, वो एक एंटीक पीस बन चुका है, राइट? और 1000 क्या है? 1000 में कॉइन्स ऑफ ऑल द डिनोमिनेशन। अनलिमिटेड लीगल टेंडर, आपके पास जितने भी करेंसी नोट्स हैं, दे आर गोइंग टू बी इशूड बाय आरबीआई। आपके पास चाहे ₹5 के नोट में मैं 5 लाख की पेमेंट करूं, मैं ₹10 के नोट में 10 करोड़ की पेमेंट करूं, आपके पास कोई भी लीगल राइट नहीं है। यू हैव टू एक्सेप्ट इट। ओके। और जब मेजर दो कंपनीज होती हैं जिनकी आपस में ओलिगोपोली में आपने देखा है, राइवलरी होती है आपके पास, तो आज से कुछ साल पहले सैमसंग और आईफोन की ऐसी ही राइवलरी थी। और आईफोन वालों ने सैमसंग के ऊपर केस किया था कि इन्होंने हमारी चिप को स्टील कर लिया, एंड सैमसंग लॉस्ट दैट बैटल। वो हार गए थे, एंड दे हैड टू पे अ ह्यूज अमाउंट एज अ पेनल्टी। अब सैमसंग वालों के पास तो कुछ और तरीका था नहीं। अब आपको पता है ओलिगोपोली में आई के ऊपर होती है कि मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया, नॉन प्राइस कंपटीशन होता है वहां पे। तो सैमसंग वालों ने आईफोन वालों से बदला लेने के लिए जितना भी फाइन अमाउंट था, सबसे जो स्मॉल डिनोमिनेशन की करेंसी थी, दे हैव मेड द पेमेंट इन दैट करेंसी। और कम से कम मतलब ट्रक के मतलब ह्यूज अमाउंट, और पूरा उसका ट्रक के ट्रक भर के गए कि अब तुम इसको गिनते रहो जितनी देर गिनने, मतलब दे टुक अ लॉट ऑफ टाइम टू काउंट दैट पेनल्टी अमाउंट। They were not having any legal right? So that is the advantage to discuss what is a limited legal tender and what is a limited legal tender. Are we connected with the chapter? अब इसके बाद क्या चीज है कि आपकी बुक में कैसे कैसे ये चैप्टर्स होने हैं। ऑफ कोर्स आपके पास फंक्शंस ऑफ मनी है, आपके पास इंपॉर्टेंस ऑफ मनी है,
आपके पास कैसे कैसे इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है वो है, बट सबसे पहला चैप्टर जो है, जो सबके लिए एक नई चीज लेकर आएगा, दैट इज डिफरेंट थेरीज ऑफ मनी. टाइम टू टाइम डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिस्ट हैव ट्राइड टू डिफाइन कि आपके पास मनी की कैसे डेफिनेशन बनेगी, और मनी की डेफिनेशन भी बनेगी. और सबसे बड़ा टारगेट आपको पता है, चाहे मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स हूं चाहे मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स हूं, मेरा सबसे बड़ा टारगेट क्या है? आई नीड टू ब्रिंग एन इक्वालिटी. माइक्रो में हमने क्या देखा था? डिमांड फॉर गुड्स इज इक्वल टू बी सप्लाई फॉर गुड्स. सेकंड इक्वालिटी क्या है? डिमांड फॉर लेबर हैज टू बी इक्वल टू सप्लाई फॉर लेबर. अब इस चैप्टर में हमने क्या डिस्कस करना है? वेयर एंड हाउ डिमांड फॉर मनी इज गोइंग टू बी इक्वल टू सप्लाई फॉर मनी. जितनी भी मेरे पास थेरीज हैं, चाहे मेरे पास रिकार्डियन थेरी है, चाहे मेरे पास टेनेंशियन थेरी है, चाहे मेरे पास कोई भी थेरी है, 4-5 थेरीज हैं आपके पास, टॉबिन की थेरी है आपके पास. हर थेरी में एक ही पॉइंट डिस्कस किया जाना है, हाउ डिमांड फॉर मनी इज टू बी इक्वल टू सप्लाई फॉर. फर्स्ट चैप्टर आपका उसका है. फिर आपने टाइप्स ऑफ मनी एंड ऑल दोस थिंग्स वी विल डू. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट different type of monetary policies, the RBI as a creator of money, RBI as a supplier of money, how and when they are going to make use of an expansionary monetary policy and contractionary monetary policy. चैप्टर 7 में हमने क्या किया था? कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी की थी. अब इस चैप्टर में हमने क्या करना है? कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी एंड एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी. Am I clear? Right? In tomorrow's session, now I will start with chapter unit 1, that is various theories of money. किसने कब और कैसे दी. Now, after 2 minutes, just take a break and join me back for your stats class. We are going to start with index number. Online students, any doubt? मैम जैसे चैरिटेबल ऑब्जेक्ट है तो वो कौन से मोटिव में जाएगा? चैरिटेबल कहीं पे भी नहीं जाएगा, ओके मैम. क्योंकि चैरिटेबल इज नॉट अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स. जो भी चीज आपकी चैरिटेबल है उसको हम इकोनॉमिक्स में नहीं पढ़ते हैं. ओके बेटा? यस मैम. अब अगर आप ये देखोगे, इंपॉर्टेंट थेरीज है आपका पहला ही चैप्टर. So tomorrow we are going to discuss about all these things. You have to be full with a fresh mind. And join me back for your stats class.